My name is Adil Ashraf Ahengar. I am from Srinagar. I had some things in my mind, but listening to Tanveer sir, it has all changed, and I have to change my entire speech. I have to change my entire motive here for now. But the motive is completely one. That's change, actually, because this was in my mind already. Change. Listening to him, I remembered one quotation by William Wordsworth. I love William Wordsworth. I love many literary works of him. He says, progress is impossible without change. Progress is impossible without change. And those who cannot change themselves cannot change anything in the world. Anything. And we have seen, we have witnessed. I would not be talking about past. Because if I'll start talking about past, I'll be talking about history. I'll be talking about revolutions. I'll be talking about freedom struggles. And then they have brought a change. And now they are prospering. I'll talk about our Kashmir Valley. Especially I'll talk about education. I have accidentally come into this profession. And I have accidentally got some degrees in my life. Accidentally. When I was a student, my father, my mother, my two elder brothers, they knew ये जिंदगी में कुछ नहीं करने वाला, nothing at all. कुछ चीजें मेरे जहन में थी. I skipped listening to Tanveer sir because there are only two people who I love to listen to. One is Tanveer sir and one is myself. आप बोलोगे क्यों? When I met him for the first time, मैंने बहुत टाइम तक इसको कंसिडर किया था that he was a dumb because he did not speak. हम एक एग्जाम सेंटर में मिले थे where he was not speaking to anyone. Even अगर कोई इसको ग्रीट भी कर रहा है चाय, he did not speak. And second is myself because I have overcome a disorder in my life, and that disorder was speech disorder. I used to stammer until 10th, 10वीं तक मैं stammer करता था. And today when I speak, no, I have kept this water bottle with me. There's a reason. I cannot keep my tongue dry, because if I'll keep my tongue dry, I'll start stammering like anything. I keep my tongue wet always because this is how I speak, and that I have overcome my speech disorder. It's a great thing for me. But since you said that there is someone in your life who inspires you to learn and overcome your disorders, I too have had one in my life. I was coming in 7th. Winter vacations had started. I was going to my maternal home with my mother, and I saw my mamu, maternal uncle. When we saw him, I greeted him. We called him Brother Ji. So मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम Brother Ji. And he asked my mother, ये क्या कर रहा है मन दोहन? And my mother, किहन गिंदा ना सान दोहस बे क्या कर? तामत सुजन Zuhur service. Zuhur Sahib is one more mamu. He was an English language trainer. And मैं बोल रहा हूँ यार इसमें क्या दलील आ गई? कहता हूँ आवाज़ इसकर हो छुट्टी begin had was cricket. And it was Saturday, Monday मैं खेल रहा था. I thought my mother had skipped it and she came. I was batting and she came. तो शीना का सुन जोर पायस नहीं. है वीनियर नियर सिंगर किन्हें बल्कि बात चांदा. And to be very honest, I am still afraid of my mother. अभी भी बहुत डरता हूँ अपनी माँ से. मैंने बैट डाला नीचे निकल गया and that was a life changing moment in my life. क्योंकि जो भी मैंने सीखा है, I have learned in that
10x10 रूम अभी इट डिड नॉट एग्जिस्ट. क्यों इट डज नॉट एग्जिस्ट? बिकॉज इट डिड नॉट ब्रिंग एनी चेंजेस. I have taught in a school, actually I was taught there as well, York Public School. It was an idea of one of the greatest teachers I have ever met in my life, Ghulam Nabi Ahnger sir. English के दिग्गज थे. He did not cope up with the technology. He did not cope up with the change in education. And finally वहां पर मैंने 6 महीने पढ़ाकर स्कूल बंद हो गया. अनदर स्कूल कैनी मिशन, वहां पर मैंने पढ़ाया, बंद हो गया. एकेडमीज बंद हो गई. आज के टाइम पे यू वुड हेयर द एकेडमीज लाइक फिजिक्स वाला, एलन, आकाश. व्हाई? बिकॉज दे आर अडैप्टिंग टू चेंज. Currently, you will hear the schools like Green Valley, Kashmir Harvard, RP, Crescent, and an emerging school, Ingenious. वहीं से है emerging school, just 5-year-old school है. And अभी के टाइम पे it's giving a really very tough competition to every school in the vicinity. हर एक स्कूल को बहुत ही खतरनाक competition दे रहा है. Why? Because they adapt to the change. And that's what we have come here for. मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा. तन्वीर सर ने आधा घंटा बोला, मैं नहीं बोलने वाला होता. Because I do not have that much of time. I have to do a lot of things with you people today. Because I have to firstly know you people. मुझे आप लोगों को जानना है पहले. मेरा पर्पस यहां पर जो आने का है, that's classroom management 1, communication skills 2, और इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज है कि पर्पस. मैं हमेशा ये पर्पस की बात करता हूं. वाई हैव वी बिकम टीचर्स? जब मैं टीचर बना, आई वॉज 15 years old. आई वॉज इन 10th. अब आप बोलोगे सर घर में तो हर कोई बच्चा भी आज पढ़ाता है. आई डायरेक्टली हैव एंटर्ड एन अकेडमी, नेमली लिब्रा इंग्लिश अकेडमी, एंड हैव टॉट देयर फॉर 14 years. 14 साल मैंने वहां पर पढ़ाया. I taught there from 2008 to 2022, around 14 years, क्योंकि 2022 मार्च में मैंने वो छोड़ दिया. The thing is, we are here today. मैं एक सवाल आपको पूछना चाहूंगा. Why have you come here? Because when I attended my first workshop, मैं आप ही की तरह वहां पर बैठा था, एंड जो स्पीकर वहां पर बोल रहा था, आई वॉज बोर्ड, तंग आया. लेकिन आज जब मैं कुछ बताता हूं लोगों को, आई ट्राई टू रिकैप्चुलेट एवरी सिंगल थिंग दैट आई हैव लर्न्ड इन दोज वर्कशॉप्स. आज मुझे उन वर्कशॉप्स का पर्पस समझ आ जाता है. व्हाई हैव यू कम हियर? आज यहां पर आप क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? Huh? To learn how we can overcome our fears. What fear do you have? Fear of communicating. आप नीचे बैठे. You are a teacher and I am also a teacher. No, I am a student. हम स्टूडेंट्स हैं. मैं यहाँ पर आपसे अच्छा नहीं हूँ. To be very honest, मैं यहाँ पर सीखने आया हूँ. बिकॉज जब मैं टीचर्स के साथ बैठता हूं, आई बिलीव कि यहां पर आज तो कुछ ना कुछ मिलने को, सीखने को मिलेगा ही मिलेगा. आई गेट समथिंग टू लर्न एंड आई एम इन योर कंपनी. एंड आई स्वेयर मुझे पूरा पता है कि मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे लोग यहां पर हैं, बहुत ज्यादा. सो आई हैव नॉट कम हेयर टू जस्ट गिव यू समथिंग ओनली. आई हैव कम हेयर टू टेक एज वेल. तो आप बोल रहे हैं कि हमारा है कम्युनिकेशन स्किल्स. इसमें क्या है आपको? और कोई चीज जिस चीज के लिए आप यहां पर आए हो? क्यों? What have you come to learn? कोई चीज होनी चाहिए ना. ओके, व्हाई डिड यू बिकम अ टीचर? क्यों बने आप टीचर? ऑनेस्टली बोलना, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना. डोंट लाई. मैं सच बोलूं, पहले मैं बोलूंगा फिर आपसे सुनूंगा.
I became teacher because I wanted to earn money. Literal, सीधी बात बोल रहा हूँ. My father was a blacksmith. He could not afford my fee. So I thought like I'll do something. एक हार्डवेयर शॉप पे बैठा 10th में, हार्डवेयर शॉप पे इलाहीबाग में एक हार्डवेयर शॉप थी, वहां पर बैठा. उसने को मैंने सीधे बोला आई विल बी कमिंग आफ्टर स्कूल आवर्स. और 9 बजे तक मैं शाम को वहां पर बैठता था. ही यूज्ड टू ड्रॉप मी एट होम इन द इवनिंग. खुद ही ड्रॉप करता था, लेकिन यहां से 3-4 बजे खुद ही जाया करता था. एंड देयर आई मेट अ मैन. ही वाज वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ऑफ जाहिद सर, जो कि लिबरा इंग्लिश अकेडमी के ऑनर है. His daughter was in 9th and she had to appear in exams. Accidentally मैंने उसको बोला वाला मैं पढ़ना उससे क्या चेक मेल स्क्रन तंग मिशन पगा था गंकियन. I was also in 10. वो 9th में थी. मैंने उसको पढ़ाया and he told me what are you doing here? लैंग्वेज पढ़ाओगे एक जगह पर. He called जाहिद सर, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई. अपॉर्चुनिटी क्या थी? पैसा कमाना. पार्ट टाइम में पैसा कमाऊंगा and I'll be able to study, continue my education. So main purpose मेरा क्या था? What purpose do you have now? Same. And until you have this very particular purpose of doing this job, I would like to suggest you, brutally honest, leave this job. छोड़ दो ये job. You enter in the corporate sector, up hefty amount of money कमाओगे. You will earn hefty amount of money, but you will never earn that satisfaction. यहां पर जब आप आते हो ना, you will be talking about different things. यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है. I promise you, after 10 years, you will not remember even a single thing that you are talking today about. एडमिनिस्ट्रेशन ने ये किया, सर ने वो वैसा किया, तन्वीर सर आज ऐसा कर रही है. You will not talk about these things tomorrow after 10 years. You'll talk about one thing. After 10 years, I'm talking about one thing. Mr. Asif Sultan Matta, one of the teachers in this school, my taught. Javed Ahmad Matta, one of the teachers in IIS, Islamic International School, my taught. Mr. Arfat Ahmed, one of the computer teachers and someone who is a language trainer as well, my taught. There is a teacher named Umar Ahmed. He's teaching in Anantnag, my taught. There is one more teacher, Mr. Rais Ahmed, teaching in HMT, my taught. And there are many teachers. There are many people working in different corporates. And I proudly say, my taught. This is something that we're going to talk about after 10 years. We're not going to talk about कि इसने क्या किया, उसने क्या किया. And when for the first time one of my students told me, sir, you're my favorite teacher. And that day I realized money is not the only purpose of entering. हाँ, पैसा जरूरी है. मैं नहीं बोल रहा हूँ. घर में you have to feed, you have to provide for your family. But that should not be the ultimate purpose. I'm telling you, your purpose is to earn money. Leave it right now. छोड़ दो. Brutally honest. It's important to understand the purpose. तो हम यहां पर क्यों आए हैं? आपको पहले पर्पस बताना चाहूंगा मैं. ये मैं हमेशा बोलता हूं, आज फिर से बोलूंगा. हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, नाम सुना है? वो ज्यादातर पता है कहां पर जाते थे अपना टाइम स्पेंड करने के लिए? He used to spend most of his time in the market. बाजार में. बाजार मानी जाती है, हमारे दीन में बोला जाता है, गलीज जगह है. और सबसे पाक जगह मस्जिद. But he used to spend most of his time there. Why? Because he used to find most of the people there. And वो सोचते थे कि जितने सलाम मैं दिन में करूंगा उतने मुझे सवाब मिलेंगे. तो वो वहां पर जाया करते थे ज्यादातर क्या करने के लिए? लोगों से सलाम करने के लिए. और एक बार उन्होंने क्या देखा, एक लड़का था. इट वॉज बहुत ही गर्मी थी. वेदर वॉज टू हॉट. एक लड़का था बाजार में. बाजार में क्या होता है ना, यूजुअली बायर्स आर इन हरी. आपने यहां पर भी देखा होगा, आप जब यहां आते हो सुबह,
9 से या 10 बजे से 3 बजे तक। 12 बजे कोई अकाउंटेंट यहां पर हो सकता है ना, कोई जो फी भी लेता है, या पीटीएम आप करते हो, तो पेरेंट्स आर इन हरी, दे वांट टू लीव, लेकिन आप कोई हरी में। दैट्स एक्चुअली हाउ अ मार्केट वर्क्स। बायर्स आर इन हरी क्योंकि उनको लेना जाना है, द मर्चेंट्स आर नॉट इन हरी। और इस दौरान अगर आप किसी मर्चेंट को दिन के 12 बजे जल्दी में पाओगे, सो यू विल बी अ लिटिल क्यूरियस अबाउट। मैं सोचा कि एक लड़का ये क्यों इतना जल्दबाजी कर रहा है, जल्दी जाना चाहता है, निकलना चाहता है। So he went to ask him, but he did not ask him. पूछा नहीं, पूछना तो चाहते थे लेकिन पूछा ही नहीं। क्यों? Because he understood the purpose. That boy was selling ice cubes. क्या बेच रहे थे? अगर ice cubes melt हो जाएंगे, will he serve any purpose in the market? That's what you people are. आप यहां पर एजुकेशन लोगों को देते हो, and the day your purpose shifts from education to money, you're done. So यहां पर हम आए हैं पर्पस के लिए। My purpose is to teach you about communication skills, something that cannot be taught. This is something that you have to catch, you have to incorporate in yourselves, and it's not a job of 2 days or 3 days or 4 days. It's a lifelong journey. एक जिंदगी भर की जर्नी है। We have to try to learn communication skills at every nook and corner of the world and every stage of our life, at every step of our life. हर एक स्टेप पे हमें अपना communication skills ठीक करने की जरूरत है to cope up in this competitive वर्ल्ड, जहां पर हमारे विसिनिटी में ही अगर देखेंगे अब नए नए शार्क्स आ रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल्स आ रहे हैं, और ये बड़े बड़े स्कूल्स छोटे छोटे स्कूल्स को खा रहे हैं। बट दिस इज नॉट ओनली द प्लेस जहां पर आप पढ़ाने के लिए आते हो, यू प्रोवाइड योर फैमिली एज वेल, एंड यू ऑल्सो पास एजुकेशन to your children. They are your responsibility. You are teachers, and with teaching आप टीचर ही नहीं, आप एक रिस्पॉन्सिबल बंदे बनते हो, आपके पास एक पावर आ जाता है, एंड अल्लाह डेफिनेटली विल आस्क यू टुमारो, मैंने आपको एक ताकत दी थी, आपने उसका क्या किया? So you are responsible. So we will have to change now to compete with these sharks. और मुझे पूरी तरह पता है यहां पर बहुत ज्यादा टैलेंटेड टीचर्स होंगे, क्योंकि जब तक आप टैलेंटेड नहीं है तब तक आप यहां पर है नहीं। लेकिन उस टैलेंट को क्या करना है? सबसे पहली चीज मैं जो चाहूंगा ना आप ठीक करेंगे, दैट्स योर माइंड। ये है पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल स्टार्ट होता है दिमाग से। घर में लड़ाई करके आए हो और फिर टीचर क्लास में जाएगा, वो सारा गुस्सा किस पे निकलता है? देखिए, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें क्या मिलेगी? दैट वी आर डीलिंग विद किड्स। कॉर्पोरेट सेक्टर में जब जाओगे ना, आई हैव वर्क इन कॉर्पोरेट सेक्टर, लार्सन स्टोब्रो दिल्ली में एक कंपनी है, लंदन बेस्ड कंपनी है, कंस्ट्रक्शन, बिकॉज आई यूज्ड टू टीच इन दिल्ली एज वेल, और मैं पार्ट टाइम में पढ़ाता था वहां पर, फुल टाइम जॉब भी करता था फॉर अ ईयर अबाउट। अगर वहां पर कोई बोलता था कभी किसी को आज मैं खुश हूं, सारे देखते थे ये खुश क्यों है, दे आर नॉट हैप्पी टू सी यू हैप्पी। लेकिन जब आप बच्चे को बोलेंगे ना आई एम हैप्पी टुडे, तो क्या बोलते हैं? मैडम जस्ट खुश, आज मजा आएगा, आज ये मारेगी भी नहीं, आज ये डांटेगी भी नहीं। अब जब आप आओगे बोलोगे मुझे शरारत, मुझे गुस्सा है, याद रखना, अगर बेचारे डरे सहमे पड़ेंगे वहां पर, वो बोलेंगे आज अगर बात कर ली यहां से ना फेंक दे। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू कम विद माइंड, प्रिपेयर माइंड। आपका दिमाग पहले तैयार होना चाहिए पढ़ाने के लिए, योर माइंड शुड बी प्रिपेयर्ड। तो पहले आप खुद को तैयार कर लो।
तो यहां पे मैं आपको पहले पढ़ाना चाहूंगा एक चीज जो कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है, वो है स्टाइल. दिस इज वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम. ठीक है ना? स्टाइल. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टाइल? कोई बताना चाहेगा मुझे? मैम, स्टाइल 10 मिनट के बगैर, वी हैव कम टू लर्न. ओके, 1 मिनट, कैन यू कम हियर? है पेन यहां पर. आप डेस्क के पीछे जाएंगे कि डेस्क के आप यहां पर बैठेंगे? कहां पर आप कंफर्टेबल है? थैंक यू वेरी मच. आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. My name is Buddhist Kamalju. Mm-hmm. I'm from Manipur, Nokshara. Mm-hmm. And I'm come here for. And I'm a teacher. You're the teacher. और can I see your nails? ऐसे नहीं, ऐसे ना, ऐसे प्लीज. ओके, प्लीज सिट डाउन. अब मेल्स मुझे बहुत ही करेजियस लगते हैं ना, they're more brave. Sir, can I have a word with you, sir, please? What do you understand by style? It depends on the teacher. If you're talking about the behavior or the style or the looks of the teacher, the looks with the teacher is coming into the class and he's addressing the students. So it depends on that. If a teacher, like for example, it depends on the subject as well. If we talk about the language subjects, for that a teacher has to be very much in a proper dress. And if we talk about some other subjects, like I'm a computer teacher, so in style part it doesn't apply for me. It applies to some extent, but in a long run it doesn't apply to me. It doesn't apply. Yeah, to some extent it applies to me. The style, I should be in a proper sense. I should be in a proper way. I should come into the class and address the students properly. But for language subjects, the teacher has to be very careful. He has to be in a proper sense, in a proper way, where the students, they get very much motivated by the teacher. Mashallah, very good. Thank you very much. When someone is speaking, the most important thing, I will need to appreciate. तालियां ही नहीं की किसी ने. मैंने पहले करने की कोशिश की. I had markers in my hand. Kudos to you. You have great confidence. A great confidence. How many of among us you teach English? एक टीचर ने हाथ उठाया. You too teach English. आप भी इंग्लिश पढ़ाते हैं सर? आप भी इंग्लिश, आप किस क्लास को पढ़ाते हैं? Up to 8th. आप? Up to 4th. To 4. सर? 6 onwards. 6 onwards. 6th onwards. और तनवीर सर क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश. ओके. First of all, I'm not talking about style, how I look now. मुझे पता है I look good, but then I'm just kidding. तो but style is not like how you speak, आप कैसे बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या है. मैं उस स्टाइल की बात अभी नहीं कर रहा हूँ. ठीक है ना? दिस इज समथिंग दैट आई हैव डिजाइन्ड. ठीक है ना? दिस इज एन एक्रोनिम. बट सिंस यू हैव गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टाइल, इट्स वेरी गुड. जैसे आप पढ़ाते हैं, आप कैसे बात करते हैं, वो भी एक स्टाइल होता है जो कि वर्ड है, बट हियर इट्स एन एक्रोनिम. STYL. 5 लेटर्स विद 5 वर्ड्स. तो पहला होता है हमारा सब्जेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रामर वाला सब्जेक्ट नहीं है. ठीक है ना? इट्स नॉट ग्रामर सब्जेक्ट. डू वर्ड ऑफ एन एक्शन, नो. सब्जेक्ट मीन्स योर पर्पस, योर गोल. जब भी आप कोई चीज करते हैं ना, यू हैव टू कीप अ गोल. और अनफॉर्चुनेट केस ये है हमारा कि हमारा गोल ये होता है कि हमें क्लास में आना है और अपना लेक्चर डिलीवर करना है. अल्लाह अल्लाह खैर सलाम. 3 टाइप्स ऑफ टीचर्स होते हैं आपके. लेवल है 3 टीचर्स, 3 लेवल्स होते हैं आपके. एक है मीडियोक्रिटी, आप में, हम में. लेट्स कम, डिलीवर, लीव. क्यों?
बिकॉज इट्स योर ड्यूटी। आपको देख रहे हैं ना, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज निकलती है क्लास में, टीचर कर क्या रहा है, बैठा मत है, बैठो कोई मसला नहीं है, बट आर यू गिविंग व्हाट इज रिक्वायर्ड और नॉट? आप आते हो पढ़ाने के लिए, निकलते हो, हम सॉरी मोस्ट ऑफ अस कम, टीच एंड लीव। बच्चे ने सीखा नहीं सीखा डज नॉट मैटर एट ऑल। दूसरी लेवल होती है आपकी बिकमिंग अ ग्रेट टीचर। ही कम्स कि मेरा जो ये बच्चा है इसको समझ आ जाए, अगर इसको समझ में नहीं आए तो इसको पूरा समझाऊं मैं, एक्सप्लेन टू हिम। एंड द थर्ड वन इज इंस्पिरेशनल टीचर। दैट इज, इसको देखकर बोलता हूं मैं, बनना है तो इसी के जैसा बनना है, वरना नहीं बनना है। And my subject in my life has been to come and inspire my students. मैंने ऑनलाइन सेशंस लिए हैं, and I do not only teach. I try to make students think. The goal in the class, आपका सब्जेक्ट क्या है, that is very important. लेकिन उसके बाद आपका आता है T, that's thoughts. यहां पे हम मात खाते हैं, दैट्स वेयर वी लैक, हमारे थॉट प्रोसेस। आप में से कितने बंदे ये सोचते हैं कि ये टीचर मुझसे अच्छा है? तनवीर सर ने अभी स्पीच दे दी, पता नहीं खुद को क्या समझता है। आदू ने ये भी तो सोचा होगा, काश मुझे भी आ जाते, है ना? टू टाइप्स ऑफ जेलसीज, रशिक और हसद। रशिक का मतलब होता है ये कर रहा है तो मैं भी करूंगा, हसद होता है कि यही क्यों कर रहा है, नहीं करना है इसको। और वी हैव गॉट बोथ फीलिंग्स मिक्सड। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे नहीं आएगा, किस किस को है? हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ से नहीं, ऐसे दिखा। किस किस को अंदर से होता है ताग्या ना ताग्या? I'm trying to mix my language, isn't it? This is actually a natural tendency, and I do not think that this is wrong. To be very honest, I believe it's a good tendency because that's what makes you a human being. यही चीज हमें क्या बनाती है? तो थॉट प्रोसेस आप में पहला होना चाहिए। आप रख लो खुद में एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। आप बोलोगे सर ये मत हमें पहुंचाएगा कहां पर? एरोगेंस पर मत पहुंचाएगा। नो, इट विल मेक यू टू सेल्फ बिलीव। सेल्फ बिलीफ इज इंपॉर्टेंट। थॉट प्रोसेस में पहला सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। इफ ही कैन आई कैन। ये कैसे आया था? एक लड़का था, when I was learning English language, एक हफ्ता हुआ था। A boy of 7th, I too was in 7th, he wrote on board, tomorrow we are going to held a seminar. He wrote this sentence. कम बराबर यही सेंटेंस लिखा। जहां से ये लिख रहा है, जहां से मैं हूं, और मैं कहां पर देखूंगा अगर मैं लिख रहा हूं? अगर बंदा कोई लिख रहा है, आप लिख रहे हो, मैं कहां देखूंगा? नहीं, मैं उसी के तो ये देख रहा था ऐसे। ये बंदा सही लिख रहा है। दिस इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है ग्रामेटिकली। ठीक है? क्या है? गलत है कि नहीं है? इंग्लिश टीचर्स, है ना? आई एम नॉट हेयर टू चेक एनीवन्स नॉलेज, दैट्स व्हाई मैं पूछूंगा नहीं। यहां पर होल्ड लिख सकते हैं, ठीक है ना? बिकॉज हेल्ड इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, ठीक है ना? टुमारो वी आर गोइंग टू होल्ड अ सेमिनार वाज करेक्ट। लिखा क्या? लेकिन मैं किसको देख रहा हूं? एंड आई हैव दिस कॉम्प्लेक्स इन माई लाइफ। क्या मैं कभी बोल पाऊंगा? क्योंकि मैं तो कश्मीरी में भी सीधे नहीं बोलता था। दुकानदार के पास अगर जाता था, वो 4 बार एक ही बात बुलवाता था मुझे, डेलिबरेटली बुलवाता था। क्यों? उसको सुनना था ये कैसे हकलाएगा, क्रैक जैक बिस्किट। बोलना नहीं आता था ना। देयर वाज अ गर्ल जो कि कभी कभी अपने फादर के दुकान पे बैठती थी, और जब मैं जाता था उसके पास लाने के लिए कुछ, वो डेलिबरेटली मुझे 4-5 बार एक ही बात बुलवाती थी। क्यों? उसको सुनना होता था। और अभी भी मोहल्ले में कुछ बंदे हैं
जो बुजुर्ग है वो मुझे अभी भी पकड़ते हैं कभी, सीन क्या उसू, मैं बोलता हूँ एडमिडाल, क्यों? वो खुश हो जाता है। द थिंग इज दिस इज हाउ वेयर आई हैव कम फ्रॉम, बट द थिंग इज देन अ टीचर केम इन माई लाइफ एंड ही टोल्ड मी टू चेंज माई थॉट प्रोसेस, बिलीव इन योरसेल्फ। और वो कहां से हुआ? वो वहां से हुआ जहां पे मैं बिलीव में आज करता हूं। उसने बोला व्हाट इज योर ज़ोडिएक साइन? मैंने बोला सर वो क्या होती है? वो मैं अभी भी बिलीव नहीं करता हूं। एंड ही टोल्ड मी किस मंथ में पैदा हुए हो? मैंने बोला सर लिखते तो 7 अप्रैल है लेकिन 7 मई हूं। बोला फिर तुम टॉरस हो। मैंने बोला अच्छा वो क्या होता है? टॉरस में क्वालिटी ये होती है दैट गुड स्पीकर्स। मैं अंदर से सोच रहा हूं मैं तो हक लाता हूं, गुड स्पीकर कहां से बन गया? बट दिस थिंग एक्चुअली स्ट्रक माई माइंड। आई डोंट बिलीव इन ज़ोडिएक्स, ऑल्दो आई बिलीव इन ज़ोडिएक्स, बट इट्स नॉट लेजिटिमेट। ये हराम इल्म है। एस्ट्रोनॉमी एक इल्म है लेकिन इल्म हराम किया गया है हम पर, ठीक है ना? तो ये पता होनी चाहिए हमें, इल्म नजूम है लेकिन इल्म नजूम को हराम किया गया हम पर, ठीक है? तो I tried to figure it out. I worked on my tongue and now I speak because there was that complex in me. The positivity, optimism. हम लोग तो पेसिमिज्म से भरे हुए हैं, है ना? पेसिमिज्म क्या होता है? मेटागिन, मुझे नहीं आएगा, इसको आता है, इसको देंगे, इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जब मैंने भी पहली बार इंटरव्यू देने के लिए गया था, मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा, दाढ़ी आई ही नहीं थी। वहां पर 2-3 बंदे इंटरव्यू देने के लिए गए थे। मैंने सोचा मुझे कहां सिलेक्ट करेंगे, जबकि मुझे ही सिलेक्ट किया गया। मैं अंदर से सोच रहा हूं मुझे कहां सिलेक्ट करेंगे। एक लड़के ने बाहर एक टीचर के उसी जगह के एडमिनिस्ट्रेशन के एक मेंबर के साथ बात कर ली। मैंने सोचा शायद इसी को सिलेक्ट करेंगे। वो वहां पर वो भी सिलेक्ट नहीं हुआ, मैं ही सिलेक्ट हो गया। द थिंग इज, लेकिन ये पेसिमिज्म मेरे दिमाग में आ ही रहा है कि क्यों? इसको क्या है? इसको रिकमेंडेशन है, इसको रेफरेंसेस है, इसको मुझसे ज्यादा आता है, इसको मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसने मेरे से ज्यादा काम किया है, इसने मेरे से ज्यादा बुक्स पढ़ी है। एंड दैट्स समथिंग दैट विच लीड्स टू नेगेटिविटी। तो आप अपना थॉट प्रोसेस पहले चेंज करेंगे। चेंज योर थॉट प्रोसेस, बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू आर डिफरेंट, वी आर ह्यूमंस। और हम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट वी हैव? व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट वी हैव? आपको बताना चाहूंगा, जब इस दुनिया में इंसान नहीं था, जिन्नियात रहते थे, ठीक है ना? और उन जिन्हों ने बहुत करप्शन फैलाया था इस दुनिया में, एंड फाइनली दे वर वाइप्ड आउट बाय द ऑर्डर ऑफ अल्लाह। उनमें से एक जिन था इब्लीस, जिसको हम बोलते हैं। उनको क्या किया गया? उनको फरिश्तों के रैंक में रखा गया। एंड व्हेन अल्लाह डिसाइडेड टू मेक आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो वहां पर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला था 40 दिनों तक। एवरी सिंगल डे ही यूज्ड टू come and see this statue lifeless। अंदर से सोचता था ये जो मखलूक है, क्या ये मुझसे अच्छी होगी? क्या ये मुझसे आला दर्जे की होगी? एंड एक दिन क्या हो गया, वो वहां पर थे एंड ही पास्ड थ्रू द स्टेचू। उन्होंने बोला ये तो वीक है, मुझसे अच्छी हो ही नहीं सकती है। व्हेन इट वाज गिवन लाइफ, जब उनको जिंदगी दी गई, उसके बाद क्या हो गया? हमें अशरफुल मखलूकात बताया गया। इब्लीस वाज एरोगेंट, लेकिन हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या दिया गया उस वक्त, जो किसी को भी नहीं दिया गया? दैट वाज इल्म, नॉलेज। अल्लाह टॉट आदम अलैहिस्सलाम कि ये पेड़ है, ये फल है, ये कौन सा फल है, ये पहाड़ है। नो अदर क्रिएचर वाज एवर गिवन दिस वेरी पर्टिकुलर नॉलेज, दिस थिंग इज अ ब्लेसिंग। तो हमारे पास सबसे जो दुनिया की अजीम चीज है, द ग्रेटेस्ट थिंग, दैट्स नॉलेज। आप में से कितने लोग किताब पढ़ते हैं? हाउ मेनी अमंगस्ट यू रीड बुक्स? सच बोलना, अल्लाह हाजिर नाजिर जानकर। हाउ मेनी अमंगस्ट यू रीड बुक्स? तनवीर सर का मुझे पता है। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? उर्दू। तो आप तो माशाल्लाह लिटरेचर पढ़ते होंगे उर्दू का, ठीक है ना? और कोई पढ़ता है? इंग्लिश पढ़ाते हैं आप, ठीक। और कोई? आप पढ़ते हैं? आप क्या पढ़ाते हैं सर? इंग्लिश पढ़ाते हैं आप? वो तो जरूरी है। द थिंग इज,
जिस बंदे ने रीडिंग नहीं की, अपना इल्म रोक दिया, वो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। नेवर एवर। चाहे वो इंग्लिश वाला हो, चाहे वो मैथ्स वाला हो, चाहे वो साइंस वाला हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। और दुनिया में हमारे पास, हमें तो 4 5 6 सब्जेक्ट्स बोले गए हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। जब हम सिविल सर्विस में पढ़ाते हैं ना, एथिक्स अलग होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग होता है, कल्चर अलग है। सीसेट में ही पता नहीं 10 20 सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ते हैं पहले, फिर मेंस में पता नहीं कितना पढ़ाना पड़ता है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट? रीडिंग। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने इल्म को पहले ठीक कर लो, इल्म को बढ़ाओ, एनरिच योरसेल्फ विद नॉलेज। तो नो, अभी आधा ही घंटा हो गया। आई हैव टू स्टार्ट समथिंग टुडे, आज ही। आप इनको चाय दीजिए, कोई मसला नहीं है। दे आर नॉट स्टूडेंट्स, इजंट दैट? चले 5 मिनट का ब्रेक दे देता हूं मैं।